Hello friends. Now we will see question number 3. Following are the balance sheet of H Limited and S Limited as on 31st March 2012. Share capital of rupees 100 each, 10 lakhs or 5 lakh, reserve and surplus, general reserve 1 lakh and 150, profit and loss account 1 lakh 60,000, 1 lakh 50,000, current liabilities 4 lakh 40,000 and 2 lakhs. Fixed assets are given 4 lakh 80,000 and 2 lakh 50,000. Investments in S Limited is also given to us, that is 5 lakhs dash, or current assets 7 lakh 20,000 and 7 lakh 50,000. ठीक है. The following further information is furnished. H Limited acquired 3,000 shares in S Limited on 1/7/2011. तो I believe ये ईयर बिगिनिंग से 3 months के बाद का है. ठीक है ना. The reserve and surplus position of S Limited on 1/4/2011 was as under. ये बिगनिंग का जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है 2,50,000 और 1,20,000. On 1/10/2011, okay, that is after 6 months, S Limited issued 1 share for every 4 shares held as bonus at a face value of rupees 100 per share. No entry has been made in the books of H Limited for the receipt of these bonus shares. Okay, important point है ना. उसके बाद on 30/9/2011 S Limited declared a dividend out of its pre-acquisition profit of 25% on its then share capital. H Limited credited the dividend to its profit and loss account. Okay. After that, H Limited owed S Limited rupees 50,000 for the purchase of stock from S Limited. The entire stock is held by H Limited on 31st March 2012. S Limited made a profit of 25% on cost. 1/4 on cost, 1/5 on sales. Okay. H Limited transferred machinery to S Limited for rupees 1 lakh. The book value of the machinery to H Limited was 80,000. Prepare a consolidated balance sheet as on 31st March 2012. Again, in this question, they are asking us to prepare a consolidated balance sheet. While preparing the consolidated balance sheet, I believe आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पूरा छोड़ देना है. सेकेंड पेज में आपके 4 वर्किंग नोट्स आपको पता है. पहला COC 4-5 लाइन्स, then it is your MI 4-5 lines, then it is your general reserve of H Limited 2-3 lines, then it is profit and loss of H Limited 2-3 lines. इसके बाद हम एनालिसिस ऑफ P&L जब करते हैं S Limited का, बट इस बार पहले वर्किंग नोट नंबर 5 वो नहीं आएगा. पहले आपको एक बात समझनी इस क्वेश्चन में, वो ये है कि देखो आपने 3,000 शेयर्स एक्वायर्ड करे थे 1/7/2011 को, तो डेट ऑफ एक्विजिशन आपकी 1/7/2011 हो गई. ठीक है, बट डेट ऑफ बोनस आपका 1/10/2011 है, और ये जो बैलेंस शीट गिवन है वो 31st मार्च 2012 की गिवन है. तो इसका मतलब पहली बात इसमें ये नहीं बोला कि ये 5 लाख में बोनस नहीं इश्यू कर रखा, ये 5 लाख में बोनस ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इससे पहले जो हम कभी क्वेश्चन कर रहे थे 4th वाला, तो उसमें ये बात इंफॉर्मेशन थी कि बोनस आपने दिया और उसकी जर्नल एंट्री अभी तक आपने पास नहीं करी. इसमें बोला है कि जो H लिमिटेड है जिसको बोनस शेयर्स मिलने चाहिए उसने एंट्री पास नहीं करी, तो S ने तो कर रखी है एंट्री पास. तो इसका मतलब ये जो 5 लाख आपको टोटल शेयर कैपिटल दिख रहा है, इसके अंदर बोनस ऑलरेडी इंक्लूडेड है. बट ये जो 3,000 शेयर्स हैं, they are excluding bonus because these shares has been acquired on 1/7/2011 and bonus has been given after that, and H Limited has not passed any entry regarding bonus. Therefore, first of all, in this time working note number 5 will be calculation of holding shares in S Limited. अब आप वो कैसे करोगे? तो देखो, आपको ये पता है कि ये 5 लाख में बोनस है, यानी 5,000 शेयर्स हो गए ये पहले, तो ये 5,000 में बोनस है, यानी अब आप इसके 3 कॉलम बनाओ. पहला कॉलम पहले तो पर्टिकुलर्स बनाओ, फिर आप लिखो H लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, फिर आप लिखो MI, और फिर आप लिखो टोटल. तो टोटल के कॉलम में आप लिखो 5,000. भाई पहले 5,000 शेयर्स हैं, तो वो 5,000 शेयर्स जो हैं वो टोटल के कॉलम में, मतलब 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिखना, टोटल के कॉलम में लिखना, मगर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिखो आप. अभी मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा. तो वो 5,000 है, इसका मतलब प्री बोनस, फिर उसमें ऐड बोनस, फिर जाकर के आफ्टर बोनस. ये पर्टिकुलर्स में होना चाहिए. प्री बोनस कितने थे?
फिर आप लिखोगे ऐड बोनस, फिर आफ्टर बोनस। तो आफ्टर बोनस में जब आप लिख रहे हो तो 5000 टोटल के कॉलम में होने चाहिए। अब बोनस कितना दे रहे थे आप? 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स। तो इसका मतलब अगर पहले 4 शेयर थे तो एक बोनस मिला तो टोटल 5, यानी अगर आपके पास आफ्टर बोनस 5000 है तो इसका मतलब बिफोर बोनस 4000 होगा और 1000 का बोनस होगा। और जो बिफोर बोनस 4000 है ना, उस 4000 में से 3000 एच लिमिटेड के पास है, ये वाले शेयर ये थे, तो 1000 एमआई के पास होंगे। तो यानी प्री बोनस आपके पास बच गया 3000 एच लिमिटेड के अंदर, 1000 एमआई के, और टोटल में 4000। फिर उसमें आप ऐड कर रहे हो बोनस, तो जितने भी शेयर्स हैं सबका 4 के बदले 1, तो 3000 के बदले 750, 1000 के बदले 250 और 4000 के बदले 1000, वो तो टोटल वैसे भी आना है। तो आपके पास टोटल जो आया 5000 में से वो आया 3750 एमआई का आफ्टर बोनस, और 3750 एच लिमिटेड का, 1250 एमआई का, और 5000 टोटल का। तो इसका मतलब आपकी जो होल्डिंग हुई वो हुई 3750 डिवाइड बाय 5000, दैट इज योर 75%, और 25% होल्डिंग हुई एमआई की। दैट इज द वर्किंग नोट नंबर 5 व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड। नाउ आई बिलीव ये जो 1 लाख रुपीस का आपने बोनस दिया है ना, क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो आपके पास जनरल रिजर्व पहले से 2.5 लाख था ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का आ रहा है 1.5 लाख। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो बोनस मैंने दिया होगा वो जनरल रिजर्व यूटिलाइज करा होगा, और मैंने एंट्री पास करी होगी बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। 1 लाख। इसका मतलब जनरल रिजर्व यूटिलाइज होगा 2.5 लाख में से 1 लाख जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो गया बोनस देने के लिए। चलो ये बात समझ में आई। हाँ, अब आई बिलीव जब आपको ये 75% आ गया, तो अब आप जब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे सीओसी अकाउंट के डेबिट में, तो आपने लिख दिया होगा 5 लाख रुपए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे तो वो लिखेंगे 3,75,000, क्योंकि 5000 में से करना है तो वो सीओसी जो जाएगा वो 3750 के हिसाब से जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? क्योंकि जितना आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है आप तो उसका ही लोगे ना पूरा पूरा। हाँ, तो यू विल राइट 3,75,000, और एमआई में जब लिखोगे तो 1,25,000। बोलो बात समझ में आ गई? ओके, आफ्टर दैट आई बिलीव उसके बाद अब हम क्या करने वाले, तो अब हम एनालिसिस करेंगे ना इसका। तो आई बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास जनरल रिजर्व गिवन है 1.5 लाख, तो आप जनरल रिजर्व का पहले एनालिसिस कर लो। आपके पास जनरल रिजर्व पहले 2.5 लाख था, अब 1.5 लाख हो गया, 1 लाख बोनस में चला गया तो बचा 1.5 लाख। ये 1.5 लाख पहले से ही आ रहा है आपके पास, तो पूरा का पूरा फ्री हो गया। तो 1.5 लाख के 2 पार्ट्स कर दोगे, 75% और 25%। 75% सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में डाल देना और 25% एमआई में लिख देना, जनरल रिजर्व चला गया। अब जनरल रिजर्व के बाद हम बात करते हैं साहब, जनरल रिजर्व के बाद हम बात करते हैं साहब पीएनएल का। ठीक है, अब पीएनएल का बैलेंस आप देखोगे तो अब आप एनालिसिस करोगे पीएनएल का, तो आई बिलीव आप क्या बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस 120 आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 150 है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, और आपने डिक्लेयर भी करा है डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से ही 25% ऑफ देन शेयर कैपिटल। तो 4 लाख का 25% मतलब 1 लाख, क्योंकि ऑन इट्स देन शेयर कैपिटल लेना है। तो ये तो आफ्टर बोनस है, तो प्री बोनस तो 4 लाख ही थी, तो 4 लाख का 25% 1 लाख होता है, तो वो आप डिविडेंड भी दिखाओगे 1 लाख। तो क्लोजिंग में दिखा रहे हो आप 1,50,000 और 1 लाख 2.5 लाख हो गया, और ओपनिंग में 1,20,000 है तो 1,30,000 करंट ईयर का प्रॉफिट भी हो गया। अब जब आप इसका एनालिसिस करने जाओगे तो 1.5 लाख रुपए आपने लिए पीएनएल के, वो 1.5 लाख के आप 2 पार्ट्स करने वाले हो। पहले तो 1,20,000 प्लस 1,20,000 तो ओपनिंग आ ही रहा है ना, प्लस 1,30,000 जो करंट ईयर का प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय 3/12 भी, क्योंकि वो भी प्री में ही जाने वाला है। अब तो आपको पता है ना, आपने एक्विजिशन करा है 17 को, तो उससे पहले का प्रॉफिट तो प्री हुआ ना, तो इस साल का पूरे करंट ईयर का प्रॉफिट 1,30,000 निकाला आपने, उसका 3/12 भी तो प्री हो जाएगा। तो आई बिलीव वो 32,500 आ जाना चाहिए। तो 1,20,000 प्लस 32,500, और इसमें से आपने डिविडेंड पे कर दिया था 1 लाख रुपए का, तो वो माइनस कर दोगे आप। तो 1 लाख मैं आपको दिखा करके भी दिखा देता हूं एक बार ये, ठीक है ना भाई। 1,30,000 आया था ना आपके पास, 1,30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 32,500 प्लस 1,20,000 जो ओपनिंग आ रहा था, 150,500 माइनस 1 लाख का
डिविडेंड, तो बचा 52,500, ये प्री हो जाएगा। और अब आप इसका 75% और 25% कर दोगे जो सीओसी के क्रेडिट में और आपका एमआई में चला जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब पोस्ट कितना बचेगा, तो आई बिलीव 1,30,000 का 9/12 कर दोगे आप, वो आपके लिए पोस्ट हो गया। 1,30,000 का 9/12। मगर उस पोस्ट में से ये जो आपका अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन था ना, एक अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन में देखो 1/4 ऑन कॉस्ट था, तो प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल्स हो गया, तो 50,000 का 1/5 मतलब 10,000, तो वो 10,000 भी लेस कर देना आप, क्योंकि अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। तो एक तो ये यहां से लेस होगा और एक कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाएंगे हम, तो करंट एसेट्स में से लेस करेंगे 7,20,000 से, 10,000 का प्रॉफिट वो स्टॉक में से कम हो गया और इसके पोस्ट प्रॉफिट्स में से कम हो गया। और फिर जब ये 10,000 माइनस कर दोगे तो जो बचेगा उसको 75 और 25 कर देना। तो आई बिलीव ये आपका पीएनएल का भी एनालिसिस हो गया, ठीक है। पीएनएल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया आपका। ये बोनस वाली बात मैंने आपको बताई दी। एच लिमिटेड ने कोई एंट्री नहीं करी तो कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं साहब डिविडेंड पर। तो जो 1 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है उसमें से 75% एच लिमिटेड का है और एमआई का 25% उसको इग्नोर कर दो क्योंकि पे कर चुके हो। मगर जो आपने एच लिमिटेड को पे करा है वो उसने पीएनएल के अकाउंट में क्रेडिट करा है, तो पीएनएल में से कम करना है हमें 75,000 और वो सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए। तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड आल्सो व्हिच यू हैव डन। फिर ये एच लिमिटेड, ये अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन था आपके पास, तो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का मैंने आपको ट्रीटमेंट बता ही दिया कि आपको क्या करना है। इसके लिए वर्किंग नोट चाहो तो बना सकते हो। ये आपको एक तो पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ एच लिमिटेड में से लेस करना है और एक स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड में से लेस करना है 10,000, और फिर इंटर कंपनी म्यूचुअल ओइंग तो वो जब हम कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाएंगे तो 50,000 वो लेस कर देंगे। इसके बाद एच लिमिटेड ट्रांसफर मशीनरी टू, इसमें से सिर्फ हमको जब हम कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाएंगे तो 20,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है सिर्फ हमें वो लेस करना पड़ेगा। आई बिलीव बाय दिस योर क्वेश्चन इज ओवर। लेट अस चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। देखो ये जब आप सॉल्यूशन देखने जा रहे हो तो आई बिलीव आप चेक कर सकते हो कि सबसे पहले बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ये पूरा पेज छोड़ दिया, अब आप आओ देखो सीओसी अकाउंट में। ये आपके पास सीओसी अकाउंट आ गया, 5 लाख रुपए लिखा और ये 3,75,000 आ गया। प्री प्रॉफिट निकाल दिया, प्री एक्वेशन डिविडेंड लिख दिया, प्री रिजर्व्स पे लिख दिया। एमआई के लिए भी बनाया, रिजर्व्स ऑफ एच लिमिटेड में 1 लाख ही रह गया एज इट इज ही। और जो पीएनएल बनाया उसमें भी देखो बैलेंस जो गिवन था 1,60,000, फिर शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट भी आया, उसमें से प्री एक्वेशन डिविडेंड लेस कर दिया। और इंटर ग्रुप प्रॉफिट, हाँ वो 20,000 का जो था ना हमारा एक इंटर ग्रुप प्रॉफिट, वो भी इसमें से लेस होना था। मैंने सिर्फ आपको वो उधर बता दिया था कि कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाते टाइम लेस करना, मगर एच लिमिटेड ने चार्ज करा है तो वो एच लिमिटेड के प्रॉफिट में से भी लेस होना चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन बेसिकली, राइट। चलो तो ये भी आप समझ गए। इसके बाद अगर आप चलो तो देखो ये होल्डिंग निकाल के बताया। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2011 का 3,000 चाहिए। डेट ऑफ बोनस और डेट ऑफ कंसोलिडेशन। तो फॉर नंबर ऑफ शेयर्स मैंने जैसे बताया आपको 3 कॉलम बनाने, पर्टिकुलर्स, एच लिमिटेड, एमआई और टोटल, प्री बोनस, बोनस, पोस्ट बोनस, यू कैन चेक दैट इज व्हाट यू हैव रिटन। और उसके बाद देखो ये नोट भी आ गया आपके पास कि अमाउंट ऑफ द बोनस 1 लाख है, जनरल रिजर्व में से गया है। फिर इसने जनरल रिजर्व की जगह पहले एनालिसिस पीएनएल का कर दिया। तो आप चेक करो 1,20,000, 1 लाख डिविडेंड, 1,50,000 और 1,30,000 आपको दिख ही रहा है। फिर आप इसके बाद आगे भी चेक करोगे कि 1,50,000 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस था, तो 1,20,000 और 32,500, 152,500 में से 1 लाख गए, 52,500 प्री था वो कर दिया। और ये जो आपके पास आया 9 मंथ्स का निकाला आपने 1,30,000 का, और उसका फिर आपने 10,000 रुपए जो अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन का था वो भी लेस कर दिया, तो 87,500 बचा, उन दोनों को बांट दिया। फिर एनालिसिस ऑफ डिविडेंड पेड भी कर दिया इसने, 1 लाख रुपए का 75,000 सीओसी में जाना चाहिए और लेस फ्रॉम पीएनएल, और 25,000 को इग्नोर। और फिर इसने रिजर्व्स का भी एनालिसिस कर दिया, 1,50,000 का पूरा प्री है ना। उसके बाद ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बता दिया इसने, ठीक है ना। और अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, डाउनस्ट्रीम भी हो गया, और आई बिलीव अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन भी होगा। इंटर ग्रुप कंपनी इंक्लूडेड, ये तो फिक्स्ड एसेट्स की बात बताई इसने, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन नहीं बताया, बट वो तो आपको पता है ही सही कॉल है ना। फिर कंसोलिडेटेड शेड्यूल के सामने आ गया। एक तो इंटर ग्रुप प्रॉफिट वो 20,000 रुपए लेस हो गया, और करंट एसेट्स में से एक तो 10,000 रुपए वो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन के लेस करें और 50,000 रुपए डेटर्स के लेस करें, और करंट लायबिलिटीज में से 50,000 क्रेडिटर्स के लेस करें। एंड आई बिलीव दैट इज हाउ यू हैव एक्चुअली सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 3। ये सॉल्यूशन मैं आपको भेज रहा हूं, ग्रुप में चेक कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 11 हमें करना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच वी हैव टू चेक नाउ। ओके,
Okay, so let us read this question number 8th now. H Limited acquired 8,000 shares of 10 each in K Limited as on 31st March 2011. The summarized balance sheet of the two companies as on that date were as follows. H Limited and K Limited share capital given है 30,000 of rupees 10 each 3 lakhs, 10,000 shares of rupees 10 each 1 lakh. Capital reserve has been given 52,000. General reserve has been given 25,000 and 5,000. Profit and loss account is given 38,200 and 18,000. लोन फ्रॉम के लिमिटेड हमने लिया है 2100 का. बिल्स पेबल इंक्लूडिंग 1000 टू एच लिमिटेड. ओके, इसमें से 1000 टू एच लिमिटेड है. क्रेडिटर 17,900 and 5,000. फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन फॉर बोथ द कंपनीज. इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन 1,70,000 इन के लिमिटेड एट कॉस्ट. ओके, उसके बाद स्टॉक इन हैंड गिवन है. लोन टू एच लिमिटेड हमने ऊपर जब देखा था लोन टू के लिमिटेड वो 2100 था एंड यहां पर लोन टू एच लिमिटेड 2000 है. ओके, उसके बाद बिल रिसीवेबल इंक्लूडिंग 700 फ्रॉम के लिमिटेड 1200 टोटल है और उसमें से 700 इंक्लूड टू के लिमिटेड है. बट वहां तो बिल्स पेबल में तो 1000 था तो एच लिमिटेड के लिए, तो आई बिलीव कॉमन 700 दोनों में से लेस हो जाएंगे. उसके बाद डेटर्स 20,000 है और बैंक का भी अमाउंट गिवन है. You are given the following information. K Limited made a bonus issue on 31st March 2011. I believe हमने एक्विजिशन भी इस बार 31st March 2011 का ही करा है. डेट ऑफ बैलेंस शीट भी यही है और बोनस की डेट भी यही है. या इसका मतलब इस बार कोई पोस्ट प्रॉफिट्स है ही नहीं, प्री प्रॉफिट्स ही होंगे सारे. K Limited made a bonus issue on 31st March 2011 for 1 share for every 2 share held, reducing the capital reserve equivalently. बट द ट्रांजेक्शन इज नॉट शोन इन द अबव बैलेंस शीट. ओके, अब देखो इस बार ये जो बोनस की बात बोल रहा है कि 2 के बदले 1 शेयर दिया है. आई बिलीव अगर आप वो बोनस का ट्रांजेक्शन नहीं भी करोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने कैपिटल रिजर्व देकर करा है और कैपिटल रिजर्व वैसे भी आपका पूरा का पूरा प्री प्रॉफिट से होना है. बोनस दे दिया तो बस इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा. बट आई बिलीव वो ट्रांजेक्शन नहीं भी करोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करो या मत करो बात बराबर है. सेकेंड, interest receivable rupees 100 in respect of the loan due by H Limited to K Limited have not been credited in the account of K Limited. अच्छा, इसीलिए इसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो हमें इसके अकाउंट में क्रेडिट करना है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे. लोन टू एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट 100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी 18,000 दिख रहा है उसमें हमें 100 रुपए और ऐड करने हैं. ठीक है, तो ये एंट्री पास हो जाएगी तो 18,100 तो आपका प्रॉफिट हो गया और वो 2,100 रुपए हो जाएगा. फिर अब वो पूरा का पूरा लोन कट जाएगा जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तब. डायरेक्टर डिसाइडेड दैट फिक्स्ड एसेट्स ऑफ के लिमिटेड वर ओवरवैल्यूड एंड शुड बी रिटन डाउन बाय 5,000 का आपका रिवैल्यूएशन लॉस हो गया. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2011 शोइंग योर वर्किंग. आई बिलीव ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया अब आपके लिए. कैसे सिंपल हो गया सर? तो आई बिलीव इसमें सबसे पहले क्या करना है, वही लीव वन पेज एंटायर पेज, देन यू विल स्टार्ट विद पेज नंबर 2. सबसे पहले सीओसी अकाउंट विदाउट डूइंग द ऑफ बोनस, क्योंकि बोनस का ट्रीटमेंट करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं. जिसको नहीं समझ में आता है वो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 वापस चेक कर लो. हाँ, अब हम इसमें क्या करेंगे तो सीओसी अकाउंट बनाएंगे. डेबिट साइड में हम लिख देंगे 1,70,000 रुपए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में. बाय इक्विटी शेयर कैपिटल में आप लिख दोगे 80,000 रुपए. 1 लाख में से 80% आपके पास है ना, 8,000 शेयर है इसलिए तो 80,000 रुपए. और फिर 4-5-6 लाइन छोड़ के एमआई बनाओगे. एमआई में आप लिख दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 रुपए. ठीक है, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 बनाओगे आप. जनरल रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड 25,000 रुपए और फिर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद पीएनएल अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड आप बनाओगे 38,200 रुपीज. ये वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया. वर्किंग नोट नंबर 5 जब आप बनाओगे तो आप उसमें सबसे पहले लिखोगे जनरल रिजर्व. ये पूरा का पूरा प्री होगा, बांट दोगे इसको 80% और 20%. और ये जनरल रिजर्व जो 80% बांटा वो सीओसी के क्रेडिट में चला जाएगा और जो 1,000 है वो एमआई में चला जाएगा. फिर आप कैपिटल रिजर्व को ही बांटोगे 52,000 को. ये भी पूरा का पूरा प्री है क्योंकि, तो ये भी सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में 80% और 20% आपका एमआई में चला जाएगा. फिर उसके बाद आप पीएनएल अकाउंट की बात करोगे तो ये पीएनएल अकाउंट इस बार आपका 18,000 की जगह 18,100 हो जाएगा, जो मैंने भी आपको बताया था कि वो लोन की वजह से. फिर वो 18,100 पूरा का पूरा प्री होगा क्योंकि यही आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है. तो आप इसको भी पूरा का पूरा प्री है तो 80 और 20% एमआई और सीओसी में डाल देना. आई बिलीव आपका बोनस वाली बात हो गई, इंटरेस्ट रिसीवेबल वाली बात हो गई और हाँ लास्ट आएगा आपका रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन 5,000 का लॉस है तो एक तो सीओसी अकाउंट के डेबिट साइड लिख देना और एमआई में से लेस भी कर देना.
तो आई बिलीव वंस यू हैव डन विद दिस, आपके सारे ट्रांजेक्शन्स तो ओवर हो गए, सिर्फ आपको कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाना है। कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाते टाइम ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, जनरल रिजर्व एज इट इज यही आ जाएगा 25,000 और पीएनएल अकाउंट भी एज इट इज आ जाएगा 38,200, इसमें कुछ और आना है ही नहीं। फिर उसके बाद लोन फ्रॉम के लिमिटेड आएगा नहीं क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बिल्स पेबल में आपको सिर्फ 700 लेस करने हैं क्योंकि हमारे बिल रिसीवेबल में से भी 700 ही लेस करेंगे हम, तो इसमें 1000 बच जाएगा। क्रेडिटर्स दोनों ऐड करके दिखा देना, फिक्स्ड एसेट्स दोनों ऐड करके दिखाना और 5000 लेस कर देना। इन्वेस्टमेंट्स आएगा नहीं, स्टॉक एंड दोनों ऐड करके दिखा देना। लोन टू एच लिमिटेड आएगा नहीं, बिल रिसीवेबल में से 700 लेस कर देना, डेटर्स को दोनों ऐड कर देना, बैंक को दोनों ऐड कर देना। एंड आई बिलीव सीओसी अकाउंट में से गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, एक बार आपको समझ आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन बेसिकली। आई बिलीव देखो आप सबसे ये बैलेंस शीट के लिए देखो आपने पूरा 1 पेज पूरा छोड़ दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, सीओसी अकाउंट बनाया, 1,70,000 का बैलेंस लिखा और इक्विटी शेयर कैपिटल 80% 80,000 लिख दिया। फिर प्री पीएनएल अकाउंट का डाल दिया, जनरल रिजर्व डाल दिया और कैपिटल रिजर्व डाल दिया, तो गुडविल आ गया। एमआई में भी ऐसे ही करा आपने, जनरल रिजर्व बनाया और ये देखो पीएनएल अकाउंट भी आ गया। उसके बाद इसने ये कुछ गलती कर रखी है, ये जनरल रिजर्व इन एच लिमिटेड, ये गलती से इसने यहाँ लिख दिया शेयर इन प्री जनरल रिजर्व। ये यहाँ नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा, यहाँ पर एमआई में आएगा ये। तो प्लीज आप इसको करेक्ट करना, ये सॉल्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जनरल रिजर्व इन ये यहाँ गलती से ऐड हो गया, वो यहाँ आना चाहिए ऐड एमआई में, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ पीएनएल कर दिया, देखो 18,100 रुपीज करके ही डिवाइड करा है। फिर एनालिसिस भी कर दिया, ये 5,000 का 4,000 और 1,000, इसलिए वो 1,000 इसने गलती से यहाँ लिख दिया, वो जबकि एमआई में जाएगा। फिर जनरल रिजर्व के बाद कैपिटल रिजर्व का एनालिसिस, लॉस का एनालिसिस, आई बिलीव उसके बाद ये कंसोलिडेटेड आपका शेड्यूल भी बन गया है। ये सॉल्यूशन भी मैं आपको भेज रहा हूँ, इस तरीके से आपका सीएफएस पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।